بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ان کا انتظار کرتے ہوئے رات کے 11 بج چکے تھے۔ یوں تو وہ جلدی آ جاتے تھے، مگر آج کا دن جو کہ انتہائی خاص تھا، ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں تھک چکی تھیں، اب نیند غالب آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی آنکھوں میں انتظار کے دیے چل رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد عاطف کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر ناگواری کے احساس تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، مگر انہوں نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولے، مل گیا نا تمہیں جسے تم چاہتی تھیں؟ اب کیا بچا ہے؟ کیوں میری ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی کرہت محسوس ہوتی ہے، مگر تم تو میرے سامنے یوں بنتی ہو جیسے میں تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو چھلنی کر دیا، مگر میں خاموش صبر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ میں ان کے جوتے اتارنے کے لیے آگے بڑھی، وہ بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے، انہوں نے اس پر کوئی زحمت نہیں کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے، جبکہ میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن عاطف نے مجھے ایک ساڑی لا کر دی اور کہا کہ یہ پہن لو اور اچھی طرح تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے اور وہاں تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے عاطف سے بنا کوئی سوال کیے دوپہر کے 12 بجتے ہی ساڑی پہنی اور اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف ہو گئی۔ عاطف مجھے جلد ہی لینے آ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کو مجھے دیکھ کر تسکین آمیز جذبات ابھرے تھے، مگر جلد ہی جیسے انہوں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا ہو، جیسے وہ چاہ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرنا چاہتے ہوں۔ ان کا یہ رویہ مجھے کاٹ ڈالتا تھا۔ میں کب اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بندھی گئی تھی؟ یہ تو نصیب اور حالات نے مجھے ان کا ہم سفر بنا دیا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میری ماں کو بھی میری ساس اور میرا باپ کچھ خاص عزت نہیں دیتے تھے۔ میں جب دیکھتی اماں کو روتے ہوئے ہی دیکھتی تھی۔ میری باقی 2 بہنیں بھی اس گھر میں رہتی تھیں، مگر میں کچھ زیادہ ہی خاموش طبیعت تھی۔ ابا تو ویسے بھی سخت مزاج تھے، جبکہ اماں کے اپنے دکھ ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں کس سے بات کرتی؟ گھر میں زیادہ تر خاموشی کا راج رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے بھیڑ بکریاں اور بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، جنہیں چرانا اماں کا کام تھا۔ اکثر ہی اماں انہیں چرانے لے جاتی تھیں، میں بھی اماں کے ساتھ ہی جاتی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے اماں کے ساتھ جانا اچھا لگتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنے گھر میں ہی عاصم کی آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ جب سے میں نے اس گھر میں ہوش سنبھالا تھا، عاصم کو میں نے بھائی کہنا شروع کیا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھتی، مگر اس کی نگاہوں میں ایک انجانا سا پیغام ہوتا۔ عورت ہونے کے ناطے مجھ میں یہ حس تو تھی کہ میں اس کی نگاہوں میں چھپے ہر پیغام کو پڑھ لیتی، مگر وہ میرا بھائی تھا تو میں خود ہی کشمکش کا شکار ہو جاتی کہ شاید میں اپنے بھائی پر شک کر رہی ہوں۔ مگر ایک دن میرا یہ شک یقین میں بدل گیا۔ اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی۔ پہلے تو ابا نے حکیم سے دوا لا کر دی، مگر جب افاقہ نہ ہوا تو اماں کو ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہسپتال میں دوائی گولی کا بندوبست تو تھا، مگر مریضوں کو کھانا اپنے گھر سے لانا پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ گاؤں کا ہسپتال تھا، یہاں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر جاتے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، اب گھر میں صرف میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ اماں کو سوپ بنا کر دینے سے لے کر باقی گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر تھیں۔ اس رات اماں کا ہسپتال میں آخری دن تھا، انہیں ہسپتال سے صبح ڈسچارج کیا جانا تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اماں کے لیے سوپ تیار کر لوں، وہ واپسی میں لیتے جائیں گے، انہیں اماں کی دوائیں وغیرہ بھی لینی تھیں۔ میں اماں کے لیے سوپ تیار کرنے لگی، عاصم بھی گھر پر موجود تھا۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا آج کچھ ہو کر رہے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں سوپ کا پانی چڑھا کر کچن میں ہی کھڑی تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے یکدم پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے آصف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، آنکھوں میں ایک اجنبیت سی تھی، جیسے کہہ رہا ہو آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آج تم اکیلی ہو، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ کسی انجانے خوف کے تحت میں یکدم پیچھے ہٹی۔ عاصم نے مجھے دور ہوتے دیکھا تو میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بہت برا لگا،
मगर फिर भी जब्त को हाथ से नहीं जाने दिया कि वो मेरा भाई था। मेरे पीछे होने पर वो और करीब हो गया। आसिम के ये तेवर देखकर मैंने कहा, भाई क्या हो गया है, पीछे हटो, क्या तुम भूल गए हो, बहन हूँ मैं तुम्हारी। मगर आसिम पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। उसने मेरा हाथ झट से पकड़ लिया। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि भाई का रूप एक ढोंग था, वो मुझे कुछ और ही समझता था। मैंने अपने दांत उसके हाथों पर गाड़ दिए। वो तकलीफ से चिल्ला उठा और मैं बददस्तूर किचन से भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैंने आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर मैं जानती थी लकड़ी का ये कमज़ोर सा दरवाज़ा ज़्यादा देर आसिम के आगे टिक नहीं सकेगा। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। पहले जहन में ख्याल आया कोई नोकदार चीज़ लेकर आसिम के सर पर मार दूं, मगर अब भी मेरे दिल में उसकी मोहब्बत मौजूद थी। मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जिसका एक पट खुला हुआ था। मेरे कमरे के उस तरफ भैंसों का बाड़ा था जिसके आगे हर वक्त खुश्क घास और भूसा मौजूद होता था। मैंने खिड़की के दोनों पट खोल दिए जबकि आसिम मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। इससे पहले कि वो दरवाजे को तोड़ डालता, मैंने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। खुदा का शुक्र है मैं ऐन खुश्क घास पर जाकर लगी थी। मेरा कमला सा वजूद उस खुश्क घास में छुप गया था। घास की खुश्क डंडियां मुझे चुभने लगी, मगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर घास तो क्या, उस वक्त मैं आग में भी कूद जाती। खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानती। मैं सारी रात भैंसों के बाड़े में छुपी रही। जानती थी कि अगर यहाँ से निकली तो आसिम अभी घर पर ही मौजूद होगा। खुदा जाने किस ख्याल ने मुझे वहाँ से निकलने नहीं दिया। मैं सारी रात डरी सहमी वहीं बैठी रही। मैं घर जाना चाहती थी, मगर किसी चीज़ ने मेरे कदम रोक दिए और यही डर मेरे लिए मेरी रसवाई का बाइस बन गया। सारी रात बाड़े में गुजारने के बाद जब सुबह मेरी आँख खुली तो सूरज अपनी हल्की हल्की रोशनी फैला चुका था। मैं दबे कदमों घर के अंदर दाखिल हुई। अभी सहन में मैंने कदम रखा ही था कि अब्बा ने मुझे अंदर आते देख लिया। आओ देखा न ताओ, मेरी बालों की चोटी से मुझे पकड़ लिया और बोले, किसके साथ मुंह काला करके आ रही है, दिखा दी ना अपनी औकात। जैसा तेरा बाप था वैसी ही तू निकली। अरे ठीक कहती थी मेरी माँ कि इस गंदे खून को अपने घर ना ही आने दूं, मगर शकूरन की खातिर तुझे यहाँ ले आया। अब्बा ने मेरी माँ का नाम लेते हुए एक जोर का झटका देकर मुझे जमीन पर पटक दिया और मैं इस एहसास से ही लरस उठी कि जो शख्स जिसे मैं हमेशा बाप समझती आ रही थी वो मेरा हकीकी बाप नहीं था, बल्कि मेरा सरपरस्त था। इसने मुझे पाला था। आसिम की बदली निगाहों का जाविया भी आज समझ में आ गया। क्यों वो मुझे दूसरी नज़र से देखता था। शायद वो तो इस हकीकत से बचपन से ही वाकिफ था। होता भी कैसे ना, मुझसे 7 साल बड़ा जो था, उसे तो पता होगा ना कि मैं इस घर में कैसे आई थी। एक मैं ही पागल थी जो आसिम को भाई और इन लोगों को अपने माँ बाप समझती रही। काश मुझे पहले पता होता तो मैं आसिफ से और भी मोहतात रहती। उस दिन मेरे अब्बा बल्कि मेरे सरपरस्त ने मुझे गालियां देकर बुरा भला कहते हुए घर से निकाल दिया। अपने घर से निकलकर मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है। हमारे कस्बे से थोड़ी ही दूर एक पार्क वाक़ था जहाँ अक्सर ही बच्चे खेलने जाते थे। मुझे वहाँ जाने की बड़ी हसरत रहती थी, मगर घर में अम्मा अब्बा की सख्तियों की वजह से कभी वहाँ जाने का नाम नहीं लिया था। आज तो मैं आज़ाद थी। पाँव में कोई जंजीर नहीं थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरे कदम उसी पार्क की जानिब जा रहे थे। यकदम मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो मेरी रूह तक कांप गई। आसिम खबीस अब तक यहीं खड़ा मेरा पीछा कर रहा था। अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे घर से निकलवा कर भी तुम्हें सुकून नहीं आया? मैंने आसिम की तरफ खूंखार निगाहों से देखा तो अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहने लगा, अरे तुम तो घर से ही चली गई। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। तुम समझती हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तो फिर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आसिम ने ये घटिया बात कही। अगले ही लम्हे मेरा कमज़ोर सा हाथ एक ज़बरदस्त थप्पड़ की सूरत में उसके गाल पर पड़ चुका था। वो अपना गाल सहलाता रह गया। अरे थूकती हूँ मैं तुम्हारे घर पर और ऐसी पनाह पर जहाँ मेरी इज्जत ही महफूज ना हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और जान लो कि मैं कभी तुम्हारे घर रहने नहीं आऊँगी। मैं मर जाऊँगी, मगर ऐसी जिल्लत वाली ज़िंदगी मुझे भी कबूल नहीं। गुस्से से लाल पीला आसिम मेरी तरफ बेयकीनी से देख रहा था, जैसे उसे यकीन न हो
कि मैं घर छोड़कर भी जा सकती हूँ। वो अंगारा निगाहों से मुझे देखता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया, जबकि मैं उसे देखती रह गई। आसिम के जाने के बाद मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं उसी पार्क की तरफ जा रही थी। मेरा ख्याल था कि आसिम जाकर अम्मा अब्बा को बताएगा तो वो खुद ही मुझे लेने आ जाएंगे। आखिर मैंने इतना वक्त जो उनके साथ गुजारा था, जिम्मेदारी थी मैं उनकी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। छोटे छोटे कदम उठाती मैं अभी पार्क की तरफ जा ही रही थी कि सामने से एक औरत आती दिखाई दी। उसने एक छोटा बच्चा भी सीने से लगा रखा था। औरत बेध्यानी में जा रही थी। मेरी निगाहें जाने अनजाने में उसी पर टिकी हुई थीं। अब मैं उस औरत के करीब पहुंच गई थी। पार्क का दरवाज़ा भी करीब ही था कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, और इससे पहले कि इस औरत को गाड़ी की टक्कर लगती, मैंने अपनी सारी कुव्वत जमा की और आन की आन में उस औरत को अपनी तरफ खींच लिया। औरत जो बेध्यानी में अपने बच्चे के साथ लगी हुई थी, मेरी तरफ खौफजदा निगाहों से देखने लगी। फिर हैरत की जगह हमदर्दी और ममनूनियत ने ले ली। अब वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी ज़िंदगी बचाकर उस पर कोई एहसान कर दिया हो, जबकि मेरे लिए महज एक इत्तेफाक था। औरत ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। औरत सच में मेरी शुक्रगुजार थी। इसी तरह हमारी बातें होने लगीं। अपना दुख भूलकर मैं उससे बातें करने लगी। इस औरत की उम्र लगभग 50-60 साल होगी, मगर इतना छोटा बच्चा जो उसने उठा रखा था, यकीनन इनका पोता या नवासा होगा। अगले ही लम्हे शमशाद बेगम ने बता दिया कि ये लड़का उनका पोता है। थोड़ी देर के बाद जैसे वो होश में आ गईं और मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और इतनी सर्दी में तुमने ये बारीक से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उनका सवाल करना था कि मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने सच सच कह दिया, आंटी मेरा कोई घर नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। उनकी निगाहों में सवाल देखकर मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें मन्नोअन सुना दी, जिसे बताते हुए मैं तो रो रही ही थी। मेरे साथ शमशाद बेगम भी रोने लगीं। वो कहने लगीं कि उन्हें अपने घर में एक खिदमतगार लड़की की ज़रूरत है। इनका पोता इनसे संभलता नहीं है, बच्चे की माँ भी नहीं है। ऐसे में उनका इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उनके साथ जाने को हामी भर ली, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा अब्बा मुझे लेने आ भी जाते तो आसिम मेरा उस घर में जीना दो भर कर देता। सो उस दिन मैं शमशाद आंटी के साथ उनके घर आ गई। घर आकर मैंने उनकी इस एहसान का बदला चुकाने की खातिर उनकी खूब खिदमत की। मैं सारे घर की सफाइयाँ करती, उन्हें खाना वगैरह पका कर देती, और रात होती तो उनकी टांगें भी दुबाती। वो सच में मेरी मोहसिन थीं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक अलग कमरा दिया था। इस घर में शमशाद बेगम और उनके बेटे के सिवा कोई नहीं था। मेरा उनके बेटे से कभी कभार सामना हो जाता तो उसकी आंखों में मेरे लिए अजीब सी हकारत होती। मेरे ख्याल से ये हकारत इसलिए थी कि उसे अपने मालिक होने का गुरूर था। वो जाहिर है मुझे नौकर समझता था, क्योंकि मेरे साथ अच्छा सलूक करता। मगर जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस शख्स को मेरी नौकरानी होने से नहीं, बल्कि औरत होने से ही मसला है। बात बात पर उसके मुँह से यही निकलता, तुम जैसी औरतें, ऐसी औरतें, सारी औरतें वगैरह वगैरह। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि वो औरतों से किस कदर नफ़रत करता है। इस नफ़रत का सबब क्या था, शमशाद आंटी मुझे बता चुकी थी। उसकी बीवी अपने आशना के साथ भाग गई थी। जब ही से उसे औरत के वजूद से नफ़रत हो गई थी। मुझे भी उसकी नफ़रत या मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं था, मगर उसका छोटा बेटा मेरे साथ बहुत मानूस हो चुका था, इतना कि मेरे बगैर सोता भी नहीं था। अब मैं दिन रात उसी के साथ लगी रहती। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि बच्चे का बाप मेरे बारे में क्या सोचता है और मुझसे कितनी नफ़रत करता है। अगरचे मैंने घर के सारे काम संभाल लिए थे, मगर आंटी की गिरती सेहत इसके बावजूद भी संभल नहीं रही थी। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। दौराने अलालत उन्होंने अपने बेटे को अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो उन्हें माँ समझता है, ज़रा भी इज्जत देता है, तो मुझसे निकाह कर ले। पहले तो वो ना माना, मगर माँ की तबीयत के पेश नज़र उसे ये बात मानना ही पड़ी। मगर मुझसे निकाह करने के बाद भी आतिफ के रवैये में ज़रा भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसकी नफ़रत मुझसे बढ़ गई थी। उसकी ये सोच थी कि मैंने उसकी दौलत हथियाने की खातिर उसकी माँ को हर मुमकिन तरीके से राम किया है, और अब जबकि वो मेरे शिकंजे में आ चुकी तो मैंने उनसे उनका बेटा मांग लिया।
हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी, मगर आतिफ को कौन समझाता। आज बड़े अरसे के बाद उसने मुझे ये ब्लैक कलर की साड़ी ला कर दी थी, और वो भी इसलिए कि मैं उसके साथ एक पार्टी में जा रही थी। मगर मैं गांव की सीधी सादी लड़की थी, मुझे इन हाई क्लास पार्टीज़ में जाने का कोई तजर्बा नहीं था, और वैसे भी जो चीज़ शर्मो हया से माने हो मैं तो वो कभी न करती। पार्टी में एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, शायद उसका इरादा डांस करने का था, मगर मेरे लिए ये भी बड़ी गैर मुतवक्के बात थी। मैंने उस शख्स को भी एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर आतिफ आग बगोला हो गया और मुझे घसीटता हुआ वहाँ से ले आया, मगर घर के दरवाजे पर आकर मुझे घर लाने की बजाय दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया और दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मुझे आखिर कितनी बार कुदरत अपने घर से दरबदर करेगी। इन्हीं सोचों में गुम में आंसू बहा रही थी कि थोड़ी ही देर में मेरी सास घर से बाहर आ गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और नरमी से अपने बेटे को समझाया, बताया कि मैं किन हालात से गुजर कर आई हूँ, और ये भी कि मैं एक बार पहले भी उनकी जान बचा चुकी हूँ। उस दिन के बाद से आतिफ का रवैया मुझसे कदरे बेहतर हो गया और वो मुझसे नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगा। उनकी माँ की जितनी खिदमत मैंने की थी, शायद कोई सगी औलाद भी किसी की ना करती हो, और फिर शादी के बाद भी मैंने बड़ी बी का उतना ही ख्याल रखा जितना शादी से पहले रखा करती थी। मेरी इस खिदमत और वफा ने मेरे शौहर को मजबूर कर दिया कि वो अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दे। उसके बाद मुसलसल खिदमत और ताबेदारी से मैं इस जगह को बढ़ाती गई, यहाँ तक कि मैंने आतिफ के दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अब तो वो मुझे अपनी मलिका कहता है, मेरी हर बात मानता है, और मेरी ज़िंदगी में कोई भी गम आए तो आतिफ की बेचैनी देखने लायक होती है।